Welcome again to the next task, which is password generator. Okay, here in this topic I would like to introduce firstly what is password generator. Okay, in Python, password generator is a simple yet a powerful tool designed to create a strong, secure and random password for safeguarding digital accounts. It leverages Python's robust libraries like random or secrets to generate a alphanumerical and special character based password. You like varying lanes, ensuring security against brute force attacks. Ideal for each enthusiast and developers, this project demonstrates practical Python skills and highlights the importance of cybersecurity in everyday life. So I think they got it right now. Okay, so let's start now. So what should I create? Firstly, we have to import a random. What's the meaning of random? What? So let's create a random module. Import random, and also we have to import string. String. Import random. It means we can import you can choose a random number and string. You can choose a predefined numbers like predefined string like user, like a sky values of lowercase, uppercase, number and special characters etc. So we create, so now we create a function. Okay, function define and the function name generate password. Okay, and we here we pass the parameter. Here we write length 12, just for understanding for the user. Okay, include upper include uppercase include include upper. Okay, and then equal to true. We write our like a boolean form. Okay, so we move next. We write here comma and we write include. Again we write include what number. Okay, equal to true. Again we write a special character include special character char. We can write a short form of chars like chars chars. Okay, and equal to true. We define a boolean condition like that, and close the parenthesis. Okay, now we write, what should I write? The function body. Okay, हम लोग अब फंक्शन बॉडी के लिखेंगे. सबसे पहले हम लोग we have to create and define a lower case letter, whatever you write here in the close parenthesis like a parameters. So we define each and every terms in this body, in this function body. Okay, we write here like lower case. We define lower case, I mean assign. What assign? String dot
like a sky, ASC अमेरिकन स्टैंडर्ड वैल्यू। ओके, ये है। मैं क्या कर रहा हूँ, स्ट्रिंग डॉट स्काई लोअर केस। what is the meaning of this is the important module here. Okay, important string, whatever strings like like A B C D, whatever, like lower a, it means uppercase A B C D, like lowercase A B C D, small b, and also you know including like a special character, hashtag, at the rate, whatever, anything. Okay, so we we generate in it, we generate from this string. Okay, so let's create uppercase, lowercase के बाद lowercase, uppercase letter, uppercase letters. Okay, आई थिंक यहाँ पे भी uppercase letters असाइन होना चाहिए, मे बी जस्ट फॉर सेम। lowercase letter. ओके, डन। असाइन करने के बाद मुझे क्या लिखना पड़ेगा, लाइक स्ट्रिंग डॉट इंपोर्ट करना है स्काई वैल्यू विथ व्हाट स्काई वैल्यू विथ स्काई डॉट स्काई लोअर केस मैंने किया तो अपर केस। ओके, स्ट्रिंग डॉट स्काई अपर केस, and another things in this line of code here, we write if 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 include if include if include uppercase if include uppercase, else is has a string of boolean expressions like. Okay, it means what's the meaning of this line of code. This line of code, it means that whatever you have write in the whatever you pass the message in like a parameters, if include uppercase is true, so move on that case. इस मतलब ये है कि अगर आप लोगों ने जो आपने पैरामीटर पास किया इसके अंदर, ओके, तो ये अगर कंडीशन ट्रू होता है तभी हम यूज़र टाइप करेगा, जो आगे मैं बताऊंगा। अन्यथा क्या होगा, एल्स में वो एज ए स्ट्रिंग स्पेस स्ट्रिंग वो क्रिएट कर देगा। तो अपर केस के बाद मुझे क्या लिखना होगा, नंबर्स भी मैं डिफाइन कर देता हूँ। नंबर्स, फिर मैंने स्ट्रिंग जो मैंने इंपोर्ट किया था, स्ट्रिंग डॉट मैंने किया, फिर क्या लिखा मैंने, डिजिट्स। नंबर के साथ क्या है, डिजिट्स। फिर मैंने सेम इस पर वही करना मुझे, कंडीशन अप्लाई, इफ इंक्लूड नंबर, इफ इफ क्योंकि आज मैं कीबोर्ड से नहीं कर रहा, लैपटॉप से कर रहा, तो सो दैट्स वाई उतना इम्प्रूवमेंट नहीं है, बट आई राइट हियर, आई विल ट्राई माई बेस्ट टू इम्प्रूव। ओके, स्ट्रिंग डॉट डिजिट, इफ सेम चीज़ मैं अप्लाई करता हूँ, लाइक हेयर इफ डिजिट्स मुझे लिखना होगा यहाँ पे, लाइक इंक्लूड जो भी मैंने स्ट्रिंग डिजिट्स दिया था ऊपर जो मैं अप्लाई किया था, इफ इंक्लूड क्या करूँगा यहाँ पे, डिजिट्स था तो मैं यहाँ पे नंबर्स, इफ इंक्लूड नंबर, जो भी मैं पैरामीटर के अंदर जो मैं अप्लाई किया था वो मैं लिखूँगा, फिर एल्स कंडीशन में ऐसे स्ट्रिंग हो गया, एंटर करो।
कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पे। क्या करते हैं यहाँ पे, मैंने क्यों कर दिया? ओके कोई ना, अब सही है। विजुअल कोड में यही तो खासियत है कि आपको एरर पहले ही बता देते हैं। ओके, अब मैं स्पेशल कैरेक्टर भी डिफाइन कर देता हूँ, मैं असाइन करता हूँ स्पेशल कैर, फिर मैं इक्वल का साइन देता हूँ और फिर मैं इसमें इक्वल नहीं करता, इसको असाइनमेंट ऑपरेटर करते हैं। फिर मैं सेम चीज़ मैं करूँगा, इम्पोर्टेड जो स्ट्रिंग मैंने इंपोर्ट किया था उसको मैं इसमें मतलब जो क्या होता है पंक्चुएशन, ठीक है, यहाँ पे आगे देख रहे हैं ना पंक्चुएशन। फिर मैंने सिर्फ कंडीशन अप्लाई करता हूँ, इफ़ अगर इंक्लूड, यहाँ पे देख आ गया ना, इंक्लूड स्पेशल कैर, फिर एल्स। ओके, गॉट इट। So we write a double quotation mark for. So now we combine all these, now we combine all these pools, boolean pools, into one line of code. So we write here all characters असाइन कर देते हैं इसको, जो राइट साइड में उसी को असाइन करते हैं लेफ्ट साइड में, लोअर केस लेटर्स including like plus, upper case letter including numbers, okay, including special special character. So let's move. After that we write here condition, if not all characters. ये भी तो हो सकता है अगर कोई कैरेक्टर्स इसमें कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा है तो क्या हो सकता है, तो लाइक क्या बोल सकते हैं, एरर बताएगा, या हम बोल सकते हैं एक वैलिड हमको यूज़र से बोलना होगा कि इनपुट टाइप करें, लाइक इफ नॉट ऑल कैरेक्टर्स हियर वी राइट डबल कोलन, ओके, राइट रेज वैल्यू एरर। फिर हम क्या करेंगे यहाँ पर डायरेक्टली हम यूज़र को मैं पास करूँगा, मैसेज पास करूँगा, क्या लिखूँगा, कम से कम यूज़र को क्या करना चाहिए, एटलीस्ट कम से कम एक कैरेक्टर टाइप करें। क्यों मस्ट बी सिलेक्टेड, ये यूज़र को समझने के लिए। अब क्या करता हूँ मैं, रैंडमली जनरेट करता हूँ पासवर्ड नाम का एक वेरिएबल बनाया, पासवर्ड, ठीक है। फिर मैं इक्वल का साइन दिया, अब यहाँ पे समझना है आपको। फिर मैं यहाँ पे डॉट का साइन दूंगा, लिखता हूँ मैं ज्वाइन, फिर मैं रैंडम, कैन बी राइट रैंडम डॉट चॉइस, जो भी मैंने कैरेक्टर डिफाइन किया था, सारे कैरेक्टर्स, ऑल कैरेक्टर्स, यहाँ पे लिखा हुआ ना ऑल कैरेक्टर्स। फिर मैंने क्लोज हो गया, अंदर पहले से क्लोज है, ये जो भी मैंने डिफाइन किया था ऑल कैरेक्टर्स। अब क्या करना है मुझे,
इसी के अंदर मैं एक लूप क्रिएट करता हूँ ताकि वो लूप तक चलता रहे जब तक क्या कर रहा हूँ, इसको कवर करना है आपको। यहाँ पे लिखना है स्मॉल होगा, केस सेंसिटिव होता है। ठीक है, फॉर लूप का पता है आपको क्या होता है सिंटेक्स। रेंज, फिर मैंने कितना रेंज दे दिया, लेंथ तक, लेंथ तक डिफाइन कर देता हूँ मैं। इसका मतलब क्या होता है, एक लाइन कोड को समझते हैं, जो भी ऑल कैरेक्टर्स जो यहाँ पे आप देख सकते हैं, सारे कैरेक्टर्स को मिलाकर ये रैंडमली चॉइस करेगा। ठीक है, इसलिए मैंने रैंडम डॉट चॉइस किया। कब तक, जब तक ये लेंथ इस मतलब जो भी लेंथ डिफाइंड किया वहाँ तक वो रेंज सीमित हो, तब तक ये चलता रहेगा, कोड ये चलता रहेगा। ओके, अब मूव करते हैं अगले कोड पे। फिर मैं क्या करूँगा, रिटर्न कर दूँगा जो भी आएगा आउटपुट। किसको रिटर्न करूँगा, पासवर्ड जो मैंने वेरिएबल क्रिएट किया था, रिटर्न पासवर्ड। अब मैं यूज़र को डिफाइन करूँगा, मतलब कस्टमाइज करूँगा सारे को मिलाकर। क्या लिखता हूँ यहाँ पे, ट्राई एक्सेप्ट मैं पहले ही बताया था, वो क्या करता है, इनवैलिड इनपुट जो भी यूज़र टाइप करता है उसको वो रिमूव करने का काम करता है। सो दैट्स वाई वी राइट हियर इन ट्राई। फिर मैं डिफाइन कर दूँगा इसके अंदर लेंथ, फिर यूज़र पास करूँगा इनपुट ताकि यूज़र समझ सकें। इसलिए मैंने शुरू में इनपुट लगाया क्योंकि वो पता होगा कि जो भी हम डबल कोटेशन मार्क में लिखते हैं इनपुट के अंदर वो एज ए स्ट्रिंग प्रिंट होता है, इसलिए मैं इनपुट लगाया ताकि वो टाइप कास्टिंग कर सके। सो वी राइट हियर इनपुट एंड डबल कोटेशन, आफ्टर दैट वी राइट parenthesis, we write a double quotation mark and we write enter the desired, जो भी desired आपको है, आप जान यूज़र को दिखाना है, desired पासवर्ड लेंथ। यूज़र को बताना है आपको, जो भी यूज़र टाइप करेगा पासवर्ड लेंथ कम से कम मुझे कितना देना है। इसको मैं कंडीशन बता देता हूँ, लिमिट बताता हूँ, मिनिमम कम से कम 6 लेंथ होना चाहिए। ठीक है, ये हो गया। फिर क्या कहूँ, फिर जो मैंने ऊपर डिफाइन किया था जो भी सारे चीज़ को मैं कस्टमाइज़ करके यहाँ पे नीचे लिखूँगा ट्राई के अंदर, ताकि कोई अंदर इधर उधर के वर्ड ना लिखे यूज़र। आई इंक्लूड इंक्लूड करना है यहाँ पे, इंक्लूड अपर केस, फिर मैं इक्वल असाइन करता हूँ इनपुट, यूज़र से मैं इनपुट मांगता हूँ क्या आप चाहिए, तो मैं लिखता हूँ इंक्लूड अपर केस लेटर। अपर केस लेटर से पूछता हूँ क्या आपको इंक्लूड चाहिए अपर केस लेटर। यूज़र से पूछना है कि चाहिए, तो वो बोलेगा यस या नो, उसकी मर्जी। अगर वो क्या कहता है, यस कहता है या नो कहता है, चाहते तो इसको पैरेंथेसिस के अंदर लॉग भी कर सकते हैं या नहीं भी कर सकते हैं, आपकी इच्छा। फिर मैं यहाँ पे एक डिफाइन कर देता हूँ डॉट स्ट्रिप फंक्शन। फंक्शन का काम होता है और एक लोअर, जो भी अल्फ़ाबेटिक टर्म मैंने लिखा है उस सारे टर्म को, जो वाइट स्पेस आएगा इसके अंदर वाइट स्पेस सारे टर्म को डिलीट कर देगा, ये रिमूव कर देगा। और ये जो इंक्लूड है स्मॉल लेटर सबको अपने वे में अच्छे से लिखेगा। जैसे ये पहले से इन लोअर है तो इसको लोअर में रहने देगा, स्ट्रिप जो भी स्पेस अगर ज़्यादा है तो उसको सबको डिलीट करने का काम करेगा। इसलिए मैं इसका यूज़ होता है।
फिर मैंने इक्वल का साइन दिया, फिर यहाँ पे मैंने यस डिफाइन कर देता हूँ यहाँ पे यस। फिर मूव करेंगे अगले टर्म, जैसे अपर केस डिफाइन किया था वैसे मैं अब नंबर को भी डिफाइन करता हूँ, इंक्लूड नंबर्स। सेम मैं यूजर से इनपुट मांगता हूँ, क्या मानूंगा, पूछता हूँ इसमें से इंक्लूड इनपुट, इंक्लूड नंबर, यूज़र बोलेगा यस या नो। उसका मन का जवाब देखता हूँ क्या कहता है यूज़र। फिर मैं आगे क्या करूँगा, सेम डिफाइन करूँगा यस या नो कंडीशन, यस या नो डिफाइन करने के बाद फिर क्या करूँगा, इसको बंद करता हूँ। इस क्लोज करने के बाद सेम चीज़ हमको डिफाइन कर देना है यहाँ पे, स्ट्रिप डॉट लोअर, यहाँ पे ध्यान रखना है, यहाँ पे लिखना था स्ट्रिप, अरे शिट, स्ट्रिप फिर फंक्शन फिर डॉट लोअर, सेम स्ट्रिप डॉट लोअर। ओके, फिर यहाँ पे क्रिएट करना है इक्वल टू में यस। फिर मूव करेंगे नेक्स्ट, यहाँ पे कुछ एरर टाइप में बता रहा है इंक्लूड मेंबर्स, यहाँ पे एक्स्ट्रा आ गया बट इसको मैं डबल कोटेशन मार्क हटाता हूँ। अब सही है, कोई गलती नहीं, आगे चलते हैं। जैसे मैंने नंबर डिफाइन किया वैसे मैं मुझे स्पेशल कैरेक्टर को भी डिफाइन करना होगा, तो यूज़र से इनपुट मांगना होगा। स्पेशल कैर, ओके, फिर मैं इक्वल साइन करता हूँ, फिर यूज़र से मैं इनपुट करता हूँ, फिर मैं इसमें मैसेज पास करूँगा इंक्लूड स्पेशल कैरेक्टर, जो भी मैं स्पेशल कैरेक्टर्स पास किया इसके अंदर। फिर मैं इससे सेम चीज़ सवाल पूछूंगा यस या नो, सेम करना ताकि आपको कोड इजी वे में लिख रहा है ताकि आपको समझ में आए, सबको समझ में आएगा यस या सेम चीज़ यहाँ पे करना है डॉट स्ट्रिप फिर डॉट, यहाँ पे डॉट लिखूँगा साइन, फिर लोअर, उसके बाद में इक्वल का साइन, यहाँ पे इक्वल साइन यस। फिर मैंने जितने भी जो भी सारे चीज़ मैंने डिफाइन किया था पैरामीटर्स के अंदर, मैंने उसको एक कस्टमाइज़ करके मैंने लिख दिया। अब मैं क्या करूँगा, लास्ट में मैंने इफ़ में एक कंडीशन लगाता हूँ, एक और कंडीशन, अगर लेंथ ये भी हो सकता है यूज़र चालाक हो और ज़्यादा इनपुट पुट कर दे, मतलब कम से कम मैं इसको डिफाइन करता हूँ मिनिमम से मिनिमम इसको 6 तक ही इसको मतलब लिखना है, मतलब लेंथ होना चाहिए, नहीं तो क्या पास करेगा,
पासवर्ड डिफाइन करता हूँ यहाँ पे पासवर्ड लेंथ, ताकि यूज़र समझ सके, मस्ट बी एटलीस्ट कम से कम 6 कैरेक्टर का होना चाहिए, 6 कैरेक्टर्स। यूज़र समझ गया। अब इसको फिर आगे चलेंगे, फिर एल्स पार्ट क्रिएट करेंगे। इंडेंटेशन ध्यान रखना, इफ है तो यहाँ पे एल्स आएगा। एल्स पार्ट क्रिएट किए, फिर इसके अंदर लिखे मैं, इसके अंदर मैं क्या लिखता हूँ, एक पासवर्ड नाम का मैं वेरिएबल क्रिएट करता हूँ। पासवर्ड के अंदर मैं लिखता हूँ जनरेट करता हूँ पासवर्ड, जो मैंने फंक्शन में लिखा था। फंक्शन में जो भी मैंने नेम लिखा उस नेम को मैं यहाँ पे क्रिएट करूँगा। पासवर्ड जनरेटर, मैं फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ, ऐसे समझते हो, फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ। अब इसके अंदर जो मैं पास क्या क्या किया था, लेंथ था, और क्या था लेंथ, साथ ही इंक्लूड, यहाँ पे देखिए इंक्लूड अपर केस, और क्या था, इंक्लूड अपर केस, इंक्लूड नंबर्स, इंक्लूड नंबर्स, फिर क्या और किसको करते हैं, इंक्लूड स्पेशल कैरेक्टर। ठीक है, ये सारे नंबर को मैंने कॉल कर दिया फंक्शन को। फिर मैं प्रिंट कर देता हूँ, प्रिंट फंक्शन के अंदर मैं कैरेक्टर प्रिंट करने के लिए एफ का यूज़ किया। फिर मैं लिख देता हूँ जो भी जनरेटेड पासवर्ड हुआ है, क्या पासवर्ड हुआ था, जनरेटेड पासवर्ड, नाम क्या दिया मैंने, पासवर्ड। पासवर्ड को मैं यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट के अंदर मैं लिख दूँगा। ठीक है, पासवर्ड कर्ली ब्रैकेट। फिर उसके बाद मैं एक्सेप्ट, जैसे ट्राई था तो उसके अकॉर्डिंग ट्राई, इफ के साथ एल्स था, ट्राई के साथ क्या आएगा, एक्सेप्ट। इलीगल कैरेक्टर जो भी हो उसको रिमूव करेगा। वैल्यू एरर एज ई, फिर मैं प्रिंट कर दूंगा स्ट्रिंग प्रिंट करना तो एरर, एरर प्रिंट करूंगा लाइक ई। ठीक है, ये हमारा प्रोग्राम हो गया। अब हम कोड को रन करते हैं, तो आइए हम रन करते हैं। ये कोड अच्छे तरीके से, पूरी तरीके से कोड सक्सेसफुल रन हो चुका है। आप देखते हैं यहाँ पर टाइप करके आपको पूछता है इंटर द डिजायर्ड पासवर्ड, मिनिमम 6 लेंथ होना चाहिए। तो मैं बोला 8। ठीक है, फिर इंटर किया। फिर बोला इंक्लूड अपर केस लेटर, क्या आपको अपर केस लेटर चाहिए, मैंने बोला यस। फिर इंटर किया। बोला रहा है इंक्लूड नंबर्स चाहिए आपको, मैंने बोला यस। फिर इंटर। फिर बोल रहा है कि इंक्लूड स्पेशल कैरेक्टर आपको चाहिए, मैंने बोला यस। फिर इंटर। इंक्लूड स्पेशल कैरेक्टर, कुछ यहाँ पे गलती है, नेम इंक्लूड कैरेक्टर नॉट डिफाइंड, डिड यू मीन इंक्लूड स्पेशल। ओके, यहाँ पे एरर है यहाँ पे। अब फिर से रन करता हूँ मैं।